of Earth with respect to ether, and ether is supposed to be there, which is means ether was a kind of medium or material or anything you can say, and this ether is spread throughout the universe, and the means entire all the means entire universe is means it is there inside this ether, and ether is at rest. So it was supposed that ether, and why this concept was ether was there, because in Maxwell's work, uh, uh, the velocity of light was 3 lakh kilometer per second, and whenever we talk about the velocity of any object, then there must be some reference. They are saying that car is moving with 120 kilometer per hour. It means that it is that reference is it is understood to everyone that if I'm saying that the car is moving at a speed of 120 kilometer per hour, it means it is with respect to ground, not with respect to any other object, moving object. And if the same car may have a velocity of even it may be at rest also with respect to if there is a parallel railway track, and a train is also moving with 120 kilometer per hour, so the same car will be at rest. So whenever we talk of velocity, then there must be some reference frame. So in Maxwell's equation, the speed of light was 3 lakh kilometer per second. So, but it was not given with respect to which frame this speed is. So it was supposed that this speed is with respect to some stationary medium throughout the universe, and that stationary medium and that medium was supposed to be spread all everywhere means so, and it was termed as ether. Ether means it means in means ether. It is not. It is a Greek or means Latin word. It means something which is spread uniformly. Uh, means something which pervades throughout the space everywhere. So that it was supposed that this speed is with respect to absolute ether, which was at absolute rest. So there was many experiment to find the velocity of Earth with respect to not with respect to its orbit or in with respect to solar system, but with respect to ether. What is its velocity? Means we want to find the absolute velocity of Earth. So there were many experiments tried out, and among one was Results experiment, and another is Michelson-Morley experiment. So Michelson-Morley experiment, it is there in your syllabus. So we will discuss this Michelson-Morley experiment. So in this experiment, there was a kind of arrangement where light was allowed to propagate in two mutually perpendicular directions. And among these two mutual perpendicular directions, there was mirrors were also placed normal to the propagation of light, so that after reflecting from the mirrors, the light will retrace its actual path, original path. So these two reflected beams were observed by an interferometer, and I mean, when if the whole setup was supposed to be at rest, and we also had means the distance between the two mirrors, and means there was a beam splitter. That beam splitter was used to allow these light rays to go in mutual perpendicular direction. So the distance between the two mirrors from that beam splitter was kept constant, and it was both the mirrors were at the beam splitter. So it was supposed that if the whole setup is at rest and the distance is same, so what will happen?
the two rays will reach the mirror, and after reflecting, they will again come to the beam splitter. And as like in our last class, I have shown you where was that telescope was placed. So through that, they will observe the two beams. If both the beams, if both the beams have traveled the same distance with same speed, then there will not be any kind of phase difference, and no interference will be observed. But if one of these two mutually perpendicular beams, if one of these two beams, if it is covering different distance, or if it is moving with a different velocity, means any reason through which there is a time difference. If they are not reaching the beam splitter at the same time, means if the time is different, then there will be a phase lag, and due to that phase lag, there will be an interference pattern will be observed. So this was the concept behind this experiment. So one of the two beams were made, means this experiment was performed in such a way that the like I have one beam is moving in this direction and another is moving perpendicular to this beam in this direction. So when the orbital speed of Earth was in such a way that Earth was moving in this direction, then this experiment in that particular duration, this experiment was that interference pattern was observed. So if the whole setup, if light beam is moving in this direction and in the same direction Earth is moving during its orbital motion in its orbit, if both these are moving in the same direction and another one is mutually perpendicular, so if we use the concept of relative velocity c plus u, c minus u, then there will be a time difference between the two beams. One is moving perpendicular, and after reflecting back, it is moving to the beam splitter. Another one is moving in this direction, and the whole setup is also moving. So as the beam is proceeding, the mirror which was kept after this beam, it was also moving in the same direction. But because velocity of Earth is less than the velocity of light, so this light beam, after it was means emerging out from the beam splitter, it will reach this mirror, but it will take some more time because the mirror is also moving. So it has to cover a distance of the initial distance which was kept between the beam splitter and mirror is this distance that we have taken as capital L. We denoted this distance as capital L, plus the velocity plus the distance that this apparatus had covered during that time duration. So we have taken this time as T1, means the T1 is the time when this beam light pulse just emerges from the beam splitter and reaches, means propagates towards the mirror and just strikes it. So this duration is T1. So during this T1, the whole apparatus will shift a distance of, if its velocity is u, then it will be away by a distance of u into T1. So u into T1 plus initial distance L. This distance has to covered by the light beam when it was moving along the direction of motion of this whole apparatus. And after reflecting back, the whole apparatus, it is moving in the same direction, and all of this thing is happening instantly. So the whole apparatus is moving, light pulse strikes this mirror and reflects back, and just after it was reflecting back from this mirror, we have taken time T2, means time T2, that T2 was the duration during which this light pulse, after reflecting from this mirror, it started and it reaches the beam splitter. But just after its reflection, that light pulse is moving in this direction, but this beam splitter is moving towards this direction. So light pulse is moving with velocity c, and this beam splitter is moving with velocity u. So what will happen?
that initial length means the length distance that light pulse has to cover, it will be reduced by a distance of u into t2. Okay, is it clear? सर एक बार डायग्राम समझा दो। Okay, okay. सो ये इस तरीके का अरेंजमेंट है। ये हमारा बीम स्प्लिटर हो गया और इसके ऊपर एक मिरर हमने यहाँ लगाया है, एक मिरर यहाँ लगाया हुआ है और यहाँ पर एक लाइट पूरा नहीं सोर्स दिख रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ सर अब दिख रहा है। यस सर। इस लाइट सोर्स से लाइट बीम ऐसे आई, इस बीम स्प्लिटर को 45 डिग्री पर है, इस पे स्ट्राइक की और जो 45 पर है तो ये 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इधर जाने के बाद में फिर इस मिरर से, बिकॉज ये नॉर्मली रखा है तो इससे फिर से रिफ्लेक्ट होगी और वो इस फिर से वो रिट्रेस करेगी और यहाँ से बीम स्प्लिटर से होकर के इधर यहाँ पर हमारा आईपीएस है, इसमें आएगी और जो दूसरा पार्ट है वो इधर आएगा और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा और फिर से इससे रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वो इसी पार्ट पर वो भी आएगा। तो अगर ये डिस्टेंस हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस हमारी ये सेम है दोनों की, तो अगर ये इन दोनों लाइट पल्स को सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है तो यहाँ पर हमको जो है ये जो पैटर्न मिलेगा ये बिल्कुल ये इन फेज होगा ये, ठीक है। Both the waves will be in phase and there will not be any kind of interference. I hope this is clear to everyone. यस सर। यस सर। सर वो जो बीच में लाइन आपने ड्रॉ की है वो सर क्या है? This is beam Yes, sir. splitter. Beam बीम स्प्लिटर। splitter. ठीक है। Its function is to split the beam into two parts. This is a partially reflecting glass plate. And because there is a partial layer of silver, so what will happen, a part of light will be reflected and part of it will be transmitted. Yes. Okay, so this is it clear to everyone? Yes सर sir। वो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी? Yes, सर ये रिफ्रैक्ट नहीं हो जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगा उससे? रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इसमें से जो है जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इधर जा रही है, ठीक है। सी आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना कि लेटरल शिफ्ट। यस, लैटरल शिफ्टिंग। यस सर। हाँ, तो वो बिकॉज ऑफ थिकनेस लेटरल शिफ्ट होगा। उन सबको करने के लिए यहाँ पर एक कंपेंसेटिंग प्लेट भी होती है, ठीक है। बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम वो सारी चीजें लेकर के नहीं चल रहे ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो थिकनेस की वजह से इस लाइट बीम को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। अगर सपोज कर इसकी थिकनेस ये है, ठीक है, अब क्या होगा कि लाइट बीम ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और इसको एक बार आना पड़ा इसके अंदर से। इस बीम को जो है ये यहाँ से जाएगी, अंदर आएगी, फिर वापस जाएगी, इसको 3 बार चलना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्टिकल पाथ, इसका जो 3 बार का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों में, उसके लिए यहाँ पर बीम स्प्लिटर लगाया जाता है ताकि वो जो है दोनों का ऑप्टिकल पाथ बराबर हो जाए, ठीक है। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, इस जो ये जो कंसेप्ट है हम इस पे रह रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है नहीं है? यस Yes, सर क्लियर। अब क्या हुआ कि एक और बना दे रहा हूँ। अब ये होल सेटअप हमारा जो है ये मूव करेगा, ये तो बीम स्प्लिटर हो गया। अब
मैं बता रहा हूँ भी मैं क्या बना रहा हूँ। तो ये हमारा सेटअप ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इनमें से एक डायरेक्शन में मोशन नहीं, बस एक डायरेक्शन, एक ये जो लाइट बीम चल रही, ये इस तरीके से रखा गया था कि जो अर्थ की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो बिल्कुल यही हो जिस डायरेक्शन में बीम मूव कर रही है। तो अब ये ऐसे चलने लगा, ये जो दूसरी वाली है ऐसे इस तरह से, ठीक है। और ये पहुंच करके ये यहाँ पर आ गया। ये आए समझ में ये चीज? सर बीम स्प्लिटर को मूव कराया जा रहा है। नहीं, पूरा apparatus, this whole apparatus is moving. ओके सर। ठीक है, this whole apparatus is moving so that this mirrors, this beam splitters and this source, everything is moving. See, moving का मतलब क्या है कि ये पूरा लैब, ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था अर्थ की सरफेस पे था ना, यस सर। और अर्थ का ऑर्बिटल मोशन है, तो वो डायरेक्शन बस ये हमने रखी थी कि जब लाइट बीम की डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल वेलोसिटी हो अर्थ की। तो ये पूरा apparatus मूव कर रहा है ना ये। ओके सर। ठीक, तो अब ये पूरा apparatus हमारा ऐसे मूव करने लगा। तो जब ये मूव करेगा तो क्या होगा कि एक लाइट बीम हमारी जो है, अब ये जो यहाँ से इससे ट्रांसमिट करी, ये ऐसे करते हुए ये इधर को प्रोसीड की, लेकिन ये पूरा मिरर ये ऐसे साथ साथ चल रहा है। तो अब इसको जो टोटल ये जो डिस्टेंस है कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, एल, तो जो इसके बीच की फिक्स डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और प्लस ये अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 समय लगा, तो u इंटू t1 ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली होगा। यस सर। यस सर। t1 टाइम में ये यहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो अब जो लाइट पल्स है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, c इंटू t1 होगा ये। यस सर। Velocity of light taken by multiplied by time it took to reach up to this point, and this must be equal to u t1 plus l, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ से हमने निकाल लिया l अपॉन c माइनस यू। अब इसको जो रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला होता है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई कि हायर में से लोअर को माइनस कर दिया, c माइनस यू, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई जिससे ये मिरर जो है बीम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, या बीम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, c माइनस यू। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये हो गया पार्ट जब ये लाइट बीम यहाँ तक पहुंची। अब ये रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने में क्या होगा, सपोज कर लेते t2 टाइम में जो है बीम रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो यहाँ से इस बीम स्प्लिटर तक पहुंच जाती है। यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, बट ये बीम स्प्लिटर उसके आगे को प्रोसीड ऐसे बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि इस टाइम में c इंटू t2, ये तो वो डिस्टेंस है जो लाइट पल्स को ट्रेवल करनी पड़ी, एंड दिस इज इक्वल टू l। बट अब क्या होगा कि बिकॉज बीम स्प्लिटर उसी डायरेक्शन में चल रहा है, और कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, c इंटू t2, तो ये आ जाए वो सॉरी u इंटू t2, u इज द वेलोसिटी ऑफ दिस apparatus, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ये आ गया हमारा c प्लस u इंटू t2 इक्वल टू l, और t2 इक्वल टू l अपॉन c प्लस u। अब देखो दो ऑपरेटर्स, एक लाइट पल्स और एक ये बीम स्प्लिटर, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी c प्लस u हो गई, और डिस्टेंस क्या थी, वो l थी। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। तो अब टोटल टाइम जो इस डायरेक्शन में इस बीम को मिरर तक जाने में, वापस आने में, बीम स्प्लिटर तक आने में जो लगा, वो क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2। और इसको हम ले लेते हैं कि दिस इज t पैरेलल, मतलब पैरेलल मीन्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट बीम। ठीक है, means the velocity of this apparatus and the velocity of the propagation of light pulse. These two are parallel. So that parallel part is t parallel, and it is equal to L upon
C minus U plus L upon C plus U. So इसको सिंप्लीफाई कर लें, C square minus U square, and this will be LC. LC plus LU plus LC minus LU. So it is twice of LC upon C square minus U square. Okay. तो इसमें से हम एक C square अगर कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा twice of L by C upon 1 minus U square by C square. ठीक है, ये चीज क्लियर है? सर एक बार टी पैरेलल रिकॉल करा दीजिए। टी पैरेलल का मतलब है कि ये पूरा जो ऑपरेटर्स है ये किधर चल रहा है, जिस डायरेक्शन में लाइट पल्स चल रही थी ना, यस सर। तो इसीलिए इस पूरे टाइम को हमने कि लाइट पल्स को यहाँ से यहाँ तक मिरर तक पहुँचने में, वापस आने में, इस बीम स्प्लिटर तक वापस आने में, ताकि हम यहाँ पर आईपीस लगा करके देख सकें। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आने में जो समय लगेगा इट इज टी पैरेलल। ओके और एक टी परपेंडिकुलर जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाली जो लाइट पल्स चल रही है ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ मोशन इसके लाइट इसके ऑपरेटर्स के। ओके सर। तो अब ये जो सोर्स है वो कांस्टेंट है, मतलब वो नहीं मूव कर रहा है। नहीं नहीं पूरा मूव कर रहा है ना, पूरा मूव कर रहा है, पूरा ही चीज पूरा अर्थ की ये पूरी लैब हमारी अर्थ के सरफेस पर है। हम सोचने वाला पॉइंट निकाल दी तो हम अर्थ की ये जो यू वेलोसिटी है ये अर्थ की वेलोसिटी है, तो ये पूरा ही चीज मूव कर रहा है। ठीक है, बट उसमें जो इम्पोर्टेंट है अर्थ ये जो मोशन हमारा सर्कुलर है, तो ये जो ऑपरेटर्स किया गया, ये जो इस तरीके से इसको अरेंज किया गया कि जो लाइट ये जो डायरेक्शन है ये वही हो जिस समय जो है मीन्स अर्थ की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में लाइट पल्स हमारी मूव कर रही है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। T2 टेंसर हाँ सर ये जो Yes. दोनों आपने इक्वेशन बनाई है सर ये बता दीजिए एक बार और। क्या चीज? स्टार्टिंग में सर ये स्टार्टिंग चीज? में C यस सर। नहीं, ये इक्वेशंस के ऊपर का कुछ क्या कह रहे हो? सर यस ये दोनों इक्वेशंस बस सर Equation. जैसे फॉर्म एक बार और बता दीजिए। यस सर। अच्छा सी बहुत सिंपल सा है भाई, अगर ये ऑपरेटर्स हमारा जो है ये सपोज कर लो भूल जाओ ऐसे है, तो ये डिस्टेंस है L। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है ये कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, तो क्या करोगे L अपॉन C, ये टाइम आ Yes, sir. जाएगा। ठीक है, Yes, sir. और यही इसके लिए भी होगा L अपॉन C। ठीक, यस सर। बट इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो बीम ये लाइट पल्स है जैसे ही यहाँ पर बीम स्प्लिटर पर आई, तो ये लाइट पल्स इससे कुछ पार्ट इसका तो रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ यहाँ से ट्रांसमिट हो गया ग्लास से जो बीम स्प्लिटर है। ठीक है, एक बार जब ये बीम स्प्लिटर से अलग हो गया, ये तो लाइट पल्स अपनी स्पीड से चल रही है ना, यस सर। और ये ऑपरेटर उससे अलग है बिल्कुल, लाइट पल्स अब इससे अटैच नहीं है। यस सर। तो जो लाइट पल्स है उसकी वेलोसिटी है c। ठीक है, यस सर। और ये जो ऑपरेटर्स इसकी वेलोसिटी क्या है u। ये ऑपरेटर्स की वेलोसिटी वो है जो कि अर्थ की वेलोसिटी है, तो u जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, लाइट पल्स की वेलोसिटी से कम होगी। यस सर। एंड बिकॉज दिस होल ऑपरेटर्स इज मूविंग, तो ये बीम स्प्लिटर और ये मिरर सब एक साथ चल रहा है, तो ये मीन्स बिकॉज लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं इसको जा करके ये मीन्स इसको मीट करेगी ना मिरर को। यस सर। तो अब भी जो लाइट पल्स को टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, एक तो डिस्टेंस हो गई जो बीम स्प्लिटर और मिरर जब इनिशियली यहाँ रखा हुआ था, जैसे यहाँ से अलग हुआ मिरर, ये मिरर यहाँ पर था पहले। ठीक है, बाद में चल रहा ना ऐसे आया यहाँ पर, तो L डिस्टेंस तो लाइट को कवर ही करनी थी ऑलरेडी बट पहले से। ऑलरेडी पहले से। और अब क्या हुआ कि ऑपरेटर्स मूव कर रहा है, तो ये ऑपरेटर्स u वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, यस सर। तो अगर t1 टाइम में ये लाइट पल्स जो है यहाँ तक स्ट्राइक करती है, तो t1 टाइम में ऑपरेटर्स u इंटू t1 डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर चुका होगा, यस सर। तो जो टोटल डिस्टेंस जो आएगी क्या आएगी, u इंटू t1 प्लस l, प्लस है। ओके सर। and that is to be covered by this light beam. So it will cover a distance of means c into t1 because velocity of light is c. सी।
ठीक है, ये समझ आ गया। यस सर। अब इस जब रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है तो जैसे ही ये लाइट पल्स यहाँ पे स्ट्राइक की, अब रिफ्लेक्ट हुई, जैसे जिस इंस्टेंट पे लाइट बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब ये अपरेटस लाइट पल्स से एकदम अलग है, ठीक है। और जिस इंस्टेंट पे इससे स्ट्राइक करी, उस इंस्टेंट पे डिस्टेंस क्या थी, इसको जो बीम स्प्लिटर के बीच में ट्रेवल करनी थी, इट वाज एल ओनली। यस सर। But this pulse was moving in this direction and this beam splitter was moving in this direction with velocity u. So Yes, that L was reduced by u into T2. ओके सर। So that light pulse is to cover C into T2. This must be equal to L minus u into T2. ओके सर। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So- sir. So the total time is from light pulse to travel in this direction to reach up to mirror and reflect back and again reach to the beam splitter. It is T1 plus T2 and it is equal to 12 by C divided by this thing. So ये चीज एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरे के लिए देखते हैं कि जो लाइट पल्स जो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई थी, इसका क्या हुआ। तो ये लाइट पल्स तो ऐसे हर डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। जब ये मिरर यहाँ पहुंचा तो उस डायरेक्शन में जो भी लाइट पल्स होगी वो यहाँ तक ऐसे मतलब इसको स्ट्राइक करेगी। अब ये डिस्टेंस लाइट तो सी स्पीड से चल रही है, सपोज कर लेते हैं ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के T3 है, तो क्या होगा। सो ये T3 के लिए अब ये डिस्टेंस हमारी जो है, दिस इज इफ द टाइम इज T3 for the light pulse to reach from this point to this point, then this distance will be C into T3, isn't it? Yes, sir. And this distance is, perpendicular distance is L. Okay. Yes, sir. And what about this? This mirror, initially it was at this point and now it is at this point. So this distance is, it is U into T3. T3. Okay. We can use Pythagorean theorem here. So C into T3 square equal to L square plus U into T3 square. Is it clear to everyone? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Now let us solve this equation for T3. So it will be T3 square C square minus U square equal to L square, and therefore this T3 will be L upon C square minus U square. Okay. Now this is the time for the light pulse to reach from this point to this point. Now because of due to the symmetry of the figure, it will take the same time for the reflected ray to means start from this point and reach up to this point, isn't it? Yes, sir. So the total time taken by this perpendicular light pulse, it will be twice of this thing, twice of T3. So T perpendicular will be Sir, that will be twice. L square, no? T3 is equal to L square. तो नीचे अंडर रूट कर दो। Okay. Sir, under root में होगा sir. Okay. It is under root. So it is 2L by under root of C square minus U square. So we can write this in the same way that we have used for this thing. So it is 2L by C and under root of 1 minus U square by C square. So up to now, this is clear to everyone, I hope. If anyone of you have any kind of doubt, then please you may ask. So these are the times taken by the two light pulse. One which is moving parallel to the direction of motion of the light beam, and another which is moving perpendicular to the direction of motion of this light beam. Okay, so see these times are different. Numerator is 2L by C in both the times, but denominator is
it is 1 minus u square by c square, but for the perpendicular ray it is 1 under root of 1 minus u square by c square. So time is different for these two rays. You got this point? Yes, sir. So because time is different, then there must be some phase lag between the two pulses, two light beams, and we must have some interference pattern, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कुछ पूछ रहे हो कोई? ओके, सो दोनों के लिए टाइम, अगर टाइम डिफरेंट है तो यहाँ पर फेज लैग होगा. फेज लैग होगा तो यहाँ पर हमको जो क्या मिल जाएगा, इंटरफेरेंस मिलना चाहिए. ठीक है, बट इस तरीके के कोई भी इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया गया. ठीक है, अभी एक पॉसिबिलिटी और है कि ये जो हमने डिस्टेंस रखी थी L दोनों के बीच की, ये जो डिस्टेंस है L और L, ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो, और वो एग्जैक्टली इक्वल करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सपोज कर लेते हैं कि ये जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है तो तब भी मिल जाएगा कि अगर दोनों के बीच में अगर वेवलेंथ के ऑर्डर की भी डिस्टेंस मैच होगा ऐसा. जी सर. इन दोनों डिस्टेंस के ये जो हमने L की वैल्यू ली है, अगर इसमें अगर वेवलेंथ के ऑर्डर की जो डिस्टेंस है एंगस्ट्रॉम में, अगर उतना भी मिसमैच है डिस्टेंस का, तो भी जो है ये क्या होगा, यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा. तो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया गया, ये जो पूरा अपरेटस था इसको जो है 90 डिग्री से रोटेट कर दिया गया. तो अब ये वाला पार्ट हमारा लाइट के प्रोपोजिशन के डायरेक्शन में था. ठीक है, ये परपेंडिकुलर था. अब क्या हो जाएगा कि ये लाइट की डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि अर्थ तो वैसे ही मूव कर रही है, हमने अपरेटस को मूव किया है ऐसे. तो अब ये वाला लाइट की डायरेक्शन में हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये क्लियर है ये चीज़? नहीं समझ आया? नो सर, सही है. नहीं समझ आया? सी, हाँ नहीं, अभी ये पूरा अपरेटस हमारा ऐसे था, अर्थ हमारी ऐसे मूव कर रही थी. ठीक है, तो हमने क्या किया, ये अपरेटस को पूरा जो है ऐसे अपरेटस को हमने रोटेट कर दिया. मरकरी का पाउंड था उसके अंदर ये पूरा था, तो हमने उस पूरे अपरेटस को मूव कर दिया. अब ये वाला हमारा जो पहले इस डायरेक्शन में था, ये लाइट की डायरेक्शन में था ये वाला मिरर, और ये परपेंडिकुलर था. अब जब इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर देंगे, अब ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है लाइट का, ये उधर हो जाएगा, और ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा. ऐसा नहीं? यस सर. यस सर, यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इस तरीके कोई भी अगर मीन्स अगर वेवलेंथ के ऑर्डर का भी किसी तरीके को कोई मिसमैच है, तो हमको जो फ्रिंज है वो फ्रिंज शिफ्ट वहाँ पर मिलना चाहिए. ठीक है, बट और वो जो थ्योरेटिकल जो उन्होंने वैल्यू ली थी वो मैं भी बता दूंगा क्या है. वो 10 मीटर और करके ली थी, 550 जो है नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज़ किया था. तो ये सारी चीज़ें जब ले करके हम इसको निकालते हैं तो फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू 0.4 आती है. तो बट इस हिसाब से यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस मिलना चाहिए, बट किसी तरीके की कोई इंटरफेरेंस का पैटर्न ये फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ. इससे ये कंक्लूड किया गया कि, और बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट भी किया गया, तो कभी भी हमको ये इंटरफेरेंस यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हुआ. इट मीन्स कि जो लाइट पल्स है, चाहे वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो या उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मीन्स जो ऑब्जर्वर या ये जो ऑब्जर्वर हमारा या सोर्स जैसे मूव कर रहा है या उसके परपेंडिकुलर, दोनों को जो सेम टाइम लग रहा है. ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है कई सारे वो एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है. ठीक है, और कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कई सारी चीज़ें हैं, तो वो उसके एक्सप्लेन करने के लिए ही बताया गया है. अब इसी में इन दोनों, हाँ सर लास्ट वाला स्टेप बता देंगे जरा. वो एक्चुअली इंटरनेट इशू हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल. अच्छा, तो कौन सा, ये वाला? यस सर. ये इसमें हमने क्या किया है कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो लाइट पल्स है, सपोज कर लेते T3 टाइम में ये जो ऑपरेटर्स है, ये लाइट पल्स जो T3 टाइम में इस मिरर को स्ट्राइक करती है. ठीक है, तो लाइट पल्स को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, C into T3, एंड बिकॉज दिस मिरर इज मूविंग, सो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस वेलोसिटी ऑफ दिस apparatus इज u, so u into T3 ये डिस्टेंस होगी, और ये L है. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बस, और उससे ये हमने T3 निकाल लिया.
और जितना टाइम T3 यहाँ से लग रहा है इतने टाइम अगेन लाइट बीम को यहाँ तक फिर से ऑपरेटर जब ऐसे मूव कर रहा है लाइट को फिर से यहाँ पर स्ट्राइक करेगी क्या करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में। सो ये टोटल टाइम इसका ट्वाइस हो जाएगा, वो हमने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, यस सर। तो अब इसको इस चीज को इन दोनों एक्सप्रेशन पे हमको फोकस करना है, ये T पैरेलल और T परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से दिया गया है कि बिकॉज फ्रेंडशिप नहीं मिल रही है, इसका मतलब दोनों के लिए जो टाइम है वो बराबर है। ठीक है, ये क्या चीज़ है 2L/c क्या है, अगर ये ऑपरेटस हमारा मूव नहीं कर रहा होता तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये क्या टाइम दे रहा है कि पैरेलल रे को कितना टाइम लगेगा 2L/c, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसको भी टाइम क्या लग रहा है 2L/c, दोनों के लिए सेम लग रहा है ना टाइम। यस सर, यस लाइट सर। पल्स को इस वाले को देखें तो ये लेंथ इधर तक जाना वापस आना 2L/c, ये हो गया टाइम कि लाइट पल्स को यहाँ से यहाँ तक जाने आने में क्या टाइम लगेगा 2L/c। ये भी अगर रेस्ट पे ले लें तो L + L वापस आने का 2L/c, ये इसका टाइम हो गया। सो ये तो वो टाइम है कि जो अगर ये स्टेशनरी है तो लग रहा है, लेकिन जब ये ऑपरेटस हमारा मूव करने लगा तो मूव करने में जो है अब टाइम जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इस चीज़ के लिए ये बताया गया कि जो लेंथ है जो पैरेलल वाली डायरेक्शन की है, अगर हम इसको लेंथ इसको हम L0 कर दें, ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख लें T पैरेलल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L0, या L0 नहीं, इसको हम पैरेलल है इसको हम पैरेलल लिख ले रहे हैं, T पैरेलल अपॉन C अपॉन में 1 माइनस U²/c²। ये दिख रहा है सभी को? ये यहाँ से ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब इससे लिंक नहीं है डायरेक्टली। अब ये हम दूसरा चीज़ ले रहे हैं कि जो T पैरेलल है उसमें हमने लेंथ ये L पैरेलल क्या है वो पैरेलल डायरेक्शन की जो लेंथ है वो ले ली, और जो T परपेंडिकुलर है इसके लिए हमने जो है सिंबल ले सर लिया पूरा है। नहीं दिख रहा है सर, साइड का नहीं दिख रहा। अभी अब सही है। तो इसको हमने ले लिया 1 माइनस U²/c²। ठीक है, यहाँ पर है 2L पैरेलल अपॉन C डिवाइडेड मीन्स L पैरेलल मीन्स पैरेलल डायरेक्शन की जो लेंथ है, और L परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो लेंथ है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बिकॉज दोनों का इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलने का मतलब है कि दोनों का टाइम क्या है, दिस T पैरेलल एंड T परपेंडिकुलर दे आर सेम। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई चीज़ है, अब क्या बच रहा है यहाँ पर U, C और ये तो दोनों कांस्टेंट है, खाली एक कंसेप्ट बच रहा है कि जो लेंथ है ये चेंज हो सकती है।